There is a common saying which states that to understand others, you have to understand yourself. Today, I, Shilpi Saxena, student of 4th semester B.Ed, is glad to have got this opportunity to welcome our respected Dr. Kiran Mishra, HOD Education, Dr. Rekha Gupta, Dean Faculty Education, all other dignitaries and participants to this invigorating webinar on understanding the self. You all would agree with me if I say that the greatest challenge in life is discovering who you are. And the second greatest challenge is being happy with what you find. It is very important to introspect on ourselves and to have a deeper understanding of who we are. So today's session is all about this. Today, we have amongst us a renowned international speaker, Dr. Kalyan Chakravarti, a visiting professor and life skills coach. He has almost 2 decades of hands-on teaching, training, and research expertise in the Middle East, Oman and UAE, Myanmar, and India. Till date, he has presented around 100 webinars, online sessions, and workshops on diverse topics such as team building, communication, lateral thinking, multiple intelligence, creativity and innovation, and various other life skills. With immense pleasure, I would like to welcome the key speaker of today's webinar, Dr. Kalyan Chakravarti, on behalf of all RNTU staff and students. Now, over to you, sir. Thank you so much, Ms. Shilpi, and thank you, Dr. Rekha and Dr. Kiran Mishra, for arranging this session. No problem, 10-15 minutes technical issue, but we'll continue. Can I share the screen, please? रमन सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए. Is it visible, madam? Screen? Yes, sir. Is the screen visible? Yes, sir. Okay, right. Thank you so much. So, Understanding Self, organized by Department of Education, Rabindranath Tagore University, Bhopal, Madhya Pradesh. As the introduction goes, this is 104th webinar in this pandemic. Though people are having various problems, technical, non-technical, biological hazards, virus, vaccine, so many things are going on. But at this juncture, it is more important to understand oneself, because without understanding ourselves, we cannot understand others. That is the idea. Okay, I heard that this is a prescribed paper also for B.Ed. I don't know about M.Ed also, maybe possible, but it has become a research area nowadays. शोध का विषय भी है. चलिए, we'll start. And this is the brief agenda of my lecture today, to explain and discuss why should we know ourselves. अपने आप को क्यों जानना चाहिए. Then we will deal with some case studies. What do you call case study in Hindi? Different situations, different issues are there that is presented to you in a case study. And how can we know ourselves? Is there any way to know ourselves? अगर कोई रास्ता है क्या अपने आप को जानने के लिए? Then techniques to know yourself. Some techniques. Then we come to application. At the end, we'll conclude with assessment. So 1 hour, 30 minutes time is given to me. And but already 15 minutes are gone, but still we'll try to adjust. Okay. Now the first question, why should we know ourselves? अपने आप को क्यों जानना चाहिए? This is the main issue. It is essential to know yourself because it becomes easy to understand others and manage your day-to-day life and work also.
ये जानना जरूरी है क्योंकि आपका काम आसान हो जाएगा। अंडरस्टैंड डे टू डे लाइफ, अपना जिंदगी अपने आप को समझ पाओगे तो अच्छा है। देन एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ यू इन दिस वर्ल्ड। हर चीज आपसे ही शुरू होती है, आपसे ही अंत होता है। Instead of waiting till others tell you what you are, it's better to try to know yourself. Instead of waiting, आप इंतजार भी कर सकते हैं, तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक के दूसरों से आपको पता ना चले। ऐसा भी पता कर सकते हैं अपने आप के बारे में। बट इट इज बेटर टू ट्राई टू नो योरसेल्फ। अगर अपने आप को असेस कर पाए, जान पाए तो बेहतर है। और वेट फॉर अदर्स, थोड़ा टाइम लगेगा मगर दूसरे लोग भी आपको बता सकते हैं कि आप क्या हो। चलो नाउ केस स्टडीज पे जाते हैं। आई हैव सम 1 2 3 4 5 6 7, बट कितना होता है देखेंगे। नाउ आई विल टेल यू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स। एक एक का फितरत बताते जाऊंगा, एक एक केस स्टडी में छोटे छोटे केसलेट्स है। आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। एंड विद द परमिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी व्हाट इज योर ओपिनियन। रेखा मैम, किरण मैम, टेक केयर। थोड़ा मैं एक दो पूछूंगा, उनको आंसर देना है। ओके, अनम्यूट होके आंसर देंगे सर स्टूडेंट्स आपको। हेलो, यस। नाउ नंबर 1, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी सज्जन का। ही इज अ वेजिटेरियन, शाकाहारी है, नॉन अल्कोहलिक। ही नेवर टच्ड अल्कोहल इन हिज लाइफ, जिंदगी में कभी अल्कोहल वो छिया नहीं। केयरिंग हस्बैंड है, बहुत अच्छे पति है। कमिटेड टू वन सिंगल लेडी। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। अगर कोई सज्जन और दुर्जन कोई भी हो सकता है, एक आदमी है, एक इंसान है, उनके लक्षण ऐसे। वो शाकाहारी है, कभी शराब नहीं किया जिंदगी में, बहुत अच्छे पति है और कमिटेड टू वन सिंगल लेडी। इनके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? जल्दी से बोलिए, एक दो, क्विकली। एनीबॉडी? We are talking about knowing yourself. Yes, responses, anybody? शिल्पी, आप भी जवाब दे सकते हो। He is a sincere person, sir. Sincere person, very good. और जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करना है क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन करना है मुझे। नहीं तो मैं ऐसे ही प्रेजेंटेशन करके जा सकता हूँ, मगर आप लोगों का भी राय जानना चाहिए। बोलिए। He is a responsible person. Responsible person, very good, thank you. Number 2 देखिए, He is an ideal home to person. understand the world. Yes, yes. He is Okay, an number ideal 2 देखिए। person. Yes, number 2 देखिए, he left home to understand the world and visited many foreign countries and he became a saint. वो घर से बाहर निकल गए हैं और पूरा दुनिया घूमे हैं, फॉरेन कंट्रीज भी घूमे हैं, अंत में वो एक सन्यासी बन गए। ऐसे व्यक्ति के बारे में आपका क्या राय? He is escaping away from his responsibilities. Okay, escaping away from responsibilities, that is correct. और यायावर है, दुनिया को ऐसे क्रिएटिव लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जी। ओके, गुड। और he is a escapist person, sir. escapist person, ओके। वो कौन हो सकता है आप गेस कीजिए, बाद में बताऊंगा आंसर। पहले वाले तो हिटलर थे, उनके बारे में बताया मैं आपको। वेजिटेरियन, Second one बुद्धा। हाँ, फर्स्ट वाले हिटलर थे, बहुत सज्जन लग रहे हैं ना, वेजिटेरियन भी है, हाँ, नॉन अल्कोहलिक है और सब कुछ है वो, मगर हिटलर है। नंबर 2 विवेकानंद जी है, विवेकानंद निकल गए थे, पूरा दुनिया घूमे हैं, बाद में सन्यासी बन गए थे। So without knowing that person's name, अगर आप देखोगे इनके लक्षण के तरफ तो दूसरा लगेगा, मगर ओरिजिनली अलग होता है। So a person is different from inside, a person is different for the world, and a person is different for neighbors. Okay, number 3 देखिए, he was a professor, trained 30,000 sannyasins across the world. 30,000 सन्यासियों को बनाए वो, मतलब ज्ञानी लोगों को बनाए। Established an ashram and his own city in America. खुद का एक शहर था उनका अमेरिका में। कंट्रोवर्शियल गुरु भी रह चुके हैं। एंड ही ओन्ड 70 और 90 रोल्स रॉयस कार्स थे उनके पास। चार्टर्ड फ्लाइट्स भी थे, ओन आर्मी भी थी, एंड ही फेस्ड मेनी लीगल केसेस इन यूएसए।
क्या ओपिनियन है इनके बारे में? किसी का माइक खुला हुआ है, थोड़ा बंद करवाइए। हाँ बोलिए। प्रोफेसर भी थे, ज्ञानी भी थे, गुरु भी थे, बहुत रिच भी थे, 80-90 रोल्स रॉयस कार्स थे, ओन फ्लाइट भी थी, ओन आर्मी थी, मगर बहुत सारे लीगल केसेस चले इनके ऊपर अमेरिका में। तो आपकी राय क्या है ऐसे लोगों के ऊपर? जल्दी बोलिए। सुभाष चंद्र बोस। सर जी, सर, मैडम, एनीबॉडी रेस्पॉन्स? सर सुभाष चंद्र बोस। Pardon me again. Yes, response please. Anybody? A learned person, perhaps also Acharya Sri Rajneesh. Yes. Very good guess. Very good guess. He was Acharya Rajneesh Osho. Osho. Yes. So, उतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी, उतना रिच होते हुए भी, वो प्रोफेसर थे, सागर यूनिवर्सिटी में भी काम कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। ओके। और उनके हंड्रेड्स ऑफ डिस्कोर्सेस है, आप यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। हर सब्जेक्ट पे उन्होंने बात किया है। बहुत बड़े ज्ञानी थे, मगर बहुत सारे केसेस भी थे। नेटफ्लिक्स में एक फिल्म आ रहा है रजनीश जी के बारे में, एक बार देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आदमी कितना भी अच्छा काम किए हो या कुछ भी हो, बट विदाउट नोइंग योरसेल्फ आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। अपने आप को जो पहचाना वो बहुत बड़ा आदमी होती है। ओके। मगर इंडिविजुअली देखा जाए तो अलग है, और आउटसाइड दुनिया की नजरिए से देखोगे वो अलग है। तो ये डिवीजन आपको समझना चाहिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो अंत में बताएंगे, मगर आप थोड़ा स्टडी कीजिए। और एक सज्जन है, ही इज नॉन वायलेंट, पीस प्रमोटर, sometimes irritatingly silent and stubborn. महात्मा गांधी। सर महात्मा गांधी। हाँ जी, महात्मा गांधी सर। महात्मा गांधी। वेरी गुड, महात्मा गांधी। हाँ, वेरी नाइस, करेक्ट। तो महात्मा गांधी जी का उनके लक्षण ऐसे थे। और सबसे पहले हम सब लोगों को अगर मौका मिले तो कस्तूरबा गांधी मैडम है ना, उनका पांव छूना चाहिए, पैर छू लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ उनको हुआ, क्योंकि घर में वो देखभाल करती थी गांधी जी। सुबह सुबह उठ जाते थे, बाहर बैठ जाते थे और साइलेंट मोड में चले जाते। कभी कभी मनमोहन सिंह जी बन जाते। साइलेंट, खत्म, कुछ भी बात करना नहीं है, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बापूजी वाई आर यू साइलेंट? खामोश। कुछ तो बताइए? खामोश। नाश्ता कीजिए? खामोश। तो कैसा समझेंगे? उसलिए इरिटेटिंगली साइलेंट बोला हूं मैं। इरिटेशन आ रहा है आपका साइलेंस देख के, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आप बता भी नहीं रहे। और स्टबर्न, बहुत जिद्दी आदमी थे। ये सब उनके लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो इंसान समझ में नहीं आएगा। अगर इंसानियत देखोगे तो कुछ और है, फितरत देखोगे कुछ और है। सो कैरेक्टर इज डिफरेंट, इंडिविजुअल पर्सन इज डिफरेंट, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू इज डिफरेंट। साइकोलॉजी में एक है जो हैरी विंडो करके, पढ़े होंगे, बीएड एमएड में कहीं पढ़े होंगे, साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेस में इनका जिक्र होता है, जो हैरी विंडो, नोन टू यू, अननोन टू यू, नोन टू अदर्स, अननोन टू अदर्स। किसी ने पढ़ा है बीएड एमएड वाले कोई? और कोई फैकल्टी शेयर कीजिए प्लीज, जो हैरी विंडो। एनीबॉडी? कैन यू हियर मी? एनीबॉडी? सर स्टूडेंट तो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं बस, डिटेल अच्छा, शायद student पढ़ा नहीं exam होगा के लिए उन्होंने, ओके, नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि इन शॉर्ट रहता है बीएड में साइको। यस यस यस, कोई बात नहीं, ये उसीलिए तो ऐसे सवाल उठाने से वो कुछ तो पढ़ेंगे और कुछ तो जानेंगे। तो जो हैरी विंडो में ये बताया गया, दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, आप पढ़िए, नेट में भी मिलेगा, जो एंड हैरी। वो कहते हैं 4 पहलू है एक इंसान के, किसी भी इंसान के, नोन टू यू, अननोन टू यू, नोन टू अदर्स, अननोन टू अदर्स। तो वो विंडो में जब किसी को फिक्स करके देखोगे तो 4 टाइप के पहलू निकलेंगे। अब कौन सा सही है लेटर। ओके, नंबर 5, ही इज वर्शिप्ड बाय ऑल, सब उनकी पूजा करते थे। सेंट वाइफ अवे फ्रॉम होम, घर से बीवी को बाहर निकाल दी।
किसी राम बच्चे की जी, आवाज आ राम रही जी। है, माइक की थोड़ा लॉर्ड mute राम, लॉर्ड राम सर, लॉर्ड राम। कालिदास, हाँ, कालिदास। yes, भगवान राम, सिया राम, उनका नाम सिया राम दिया गया, सीताराम दिया गया, मगर किसी आदमी का, हाँ सुनिए, किसी आदमी के कहने पर, हेलो, सर बोलिए। किसी आदमी के कमेंट के कारण वो अपनी वाइफ को बाहर भेज दिया। वो दुनिया के लिए किए हैं, कोई लेसन के लिए किए हैं, किसके लिए किए हैं, एक बात की बात है, मगर एज एन इंडिविजुअल he went 3000 kilometers from Ayodhya to Sri Lanka उनको बचा कर लाने के लिए, सीता मैया को। मगर घर आने के बाद राजा थे, सुनने का कोई जरूरत नहीं कौन क्या बोल रहा है, मगर कोई सफाई वाला, वो क्या कहते हैं उनको, धोबी, हाँ, किसी ने कमेंट कर दिया, वो सुनकर वो अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को भेज दिया। तो बहुत बढ़िया स्टोरी है, भगवान है, सब कुछ है, मगर एज ए कैरेक्टर देखोगे डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 देखते हैं। ही लेफ्ट वाइफ, बीवी को छोड़ दिया, हाउस, चाइल्ड, घर को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, वांडर्ड अक्रॉस इंडिया एंड नेपाल, दोनों देशों में भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध सर। यस, भगवान बुद्ध, वो दुनिया को पूरा एनलाइटनमेंट दिए हैं। बोध गया में वो वृक्ष के नीचे उनको एनलाइटनमेंट ज्ञान मिल गया, और प्रोफेसी भी किए, वो बहुत सारे इज्म स्टार्ट किए, वो बुद्धिज्म भी बन गया उनके नाम से, और इंडिया से ज्यादा बाहर मुल्कों में उनका बहुत बड़ा नाम है। इंडिया में भी है, मगर बहुत सारे कंट्रीज उनको फॉलो करते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल देखा जाए तो बहुत बड़े ज्ञानी है, महात्मा है, भगवान है, मगर एज एन इंडिविजुअल घर से निकल गए, बच्चों को छोड़ दिए, बीवी को छोड़ दिया। तो कैसा, व्हाट इज द पैरामीटर, वहीं पर आ रहा हूं मैं। ये सब एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आप परखिए, जानिए कौन सा पैरामीटर सही है, मुझे बताइए एंड में। 7, he used to drink alcohol, ये बहुत पीते थे। eat pork, पोर्क पता है ना, एक जीव है, वो कचरे कूड़े में घूमता है, पोर्क, वो खाते थे। फॉर्म्ड सेपरेट कंट्री भी बना दिए, जितना महात्मा इधर है उधर भी महात्मा बोलते हैं। क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। वंडरफुल सर, वेरी गुड गेस। यस, जिन्ना। फॉरेन एजुकेटेड थे, बहुत ज्ञानी थे। महात्मा गांधी, नेहरू, उनके साथ उठना बैठना था, और वो छुट्टा पीते थे, वो बड़ा चरूट, ड्रिंक भी करते थे, पोर्क भी खाते थे, और बहुत कंट्रोवर्शियल थे, मगर अपना कंट्री सेपरेट कर लिया ब्रिटिश वालों से लड़के। जितना महात्मा गांधी जी का नाम है उतना जिन्ना जी का भी नाम। तो ये सब एग्जाम्पल्स मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, एक ही मुद्दा है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, and without understanding others it is difficult to understand ourselves, without understanding ourselves it is difficult to understand others। और लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या है, और असली में क्या हो रहा है, और क्या लोग समझ रहे हैं, ये बहुत बड़े शोध का विषय है। ओके, इनका चित्र देखिए इधर, कैसा लग रहा है, आपका ओपिनियन बताते जाइए बस। A traditional lady. ट्रेडिशनल लेडी, वेरी गुड। ये कहीं गांव में बैठी है, कोई दफ्तर में बैठी है, कहाँ है? दफ्तर में बैठी। तो एक जिलाधिकारी है, उनका नाम है शोभा राठौड़, और झारखंड जिला रांची जगह है ना, स्टेट का कैपिटल, वहां पर पहले दिन, ड्यूटी का पहला दिन, जिलाधिकारी है, वो आईएएस ऑफिसर है, और वो जाकर अपने ऑफिस को ये पोशाक में दर्शन देती है। जाकर अपने ऑफिस में बैठ गई, सब लोग हैरान होकर देख रहे थे क्या हो गए, कौन। तो ट्रेडिशनल ड्रेस में जब ऑफिस जाओगे, कभी कभी दशहरा, दिवाली, वैसे त्योहारों के दिन ठीक है, अदरवाइज व्हाट पीपल थिंक। अब इनको पहला दिन देख के सब चौंक गए थे। Everybody started thinking, who is this lady? Why she has come like this? But उनका एक बड़ा एटीट्यूड है, उसके पीछे एक बढ़िया पर्सनालिटी है, एक बढ़िया मैसेज दे रही है, she is communicating something। क्या समझ में आ रहा है? अगर ऐसा कोई ऑफिस में जाता है तो क्या समझेंगे? अपना अपना राय दीजिए प्लीज। क्विकली। कल्चर, एक चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी, बताइए।
we should respect our culture and we should not leave our culture and the society. Okay. Okay. अपने परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। Okay. मगर कितने प्रतिशत भारतीय ऐसा सोचते हैं कि अपने अपने सांस्कृतिक धरोहर को निभाना चाहिए और इसी ड्रेस में जाना चाहिए? हम सब लोग अपना अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर चुके हैं, मैं भी चेंज कर चुका हूं। एवरीबडी, बिकॉज इंडियंस आर वेरी अडेप्टेबल। मैं यूरोप में देखा हूँ, टर्की में देख रहा हूँ, ओमान में देख रहा हूँ। Somebody's mic is on, मैडम। मीनू सिंह प्लीज आप म्यूट कीजिए। मीनू आप म्यूट कीजिए प्लीज। मैंने आपके लिए स्पेशल शुगर की मिठाई मंगाई। ओके, बताइए। How many people want to really do traditional attire? And how people react? बताएं प्लीज। Anybody? अपना रेस्पॉन्स दीजिए। Conservative. Conservative, yes. और तो उनका मैसेज क्या था, क्यों गई है वो ऑफिस को ऐसा ये ड्रेस में? सर वो बंजारी समाज को हाँ हाँ बोलिए। सपोर्ट करना चाह रहे थे। ओके, समाज को मैसेज देना चाह रही है। She is trying to give a strong message to the world that respect me as an individual. Don't worry about my community, my caste, my creed, or my social status, my richness, my poorness, my language, my geography. मेरा एरिया क्या है, मेरा स्कूल क्या है, मेरा वंश क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, ये सब से कोई मतलब नहीं है। Try to respect me as a person, and I am sitting in the chair of a district head, IAS officer, जिलाधिकारी, but I am not forgetting my roots. मैं जहाँ से आई हूँ मैं उसको नहीं भूल सकती। आप भी रेस्पेक्ट करना सीखिए, irrespective of the person's background. Try to respect them because of their attitude, skills and knowledge. ये था मैसेज। ओके, अभी देखिए मेन मुद्दा ये है, हाउ कैन यू नो योरसेल्फ? आपके पास क्या व्हाट यू कॉल पैरामीटर्स है, देखते हैं। अभी टॉप में देखिए, बाय अदर्स फीलिंग्स एंड कमेंट्स। ये एक जरिया है अपने आप को जानने का। व्हेन पीपल, व्हाट पीपल आर फीलिंग अबाउट यू एंड व्हाट दे आर कमेंटिंग अबाउट यू, इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा आप क्या हो। राइट में देखिए क्लॉकवाइज में, थ्रू फ्रेंड्स, आपके मित्र जो है वो बता सकते हैं। एनिमीज, ये बहुत ज्यादा बता सकते हैं, आपके क्या कहते हैं शत्रु, दुश्मन। और एनिमी लाइक फ्रेंड्स, ये भी एक कैटेगरी है। और फ्रेंडली एनिमीज, 4 कैटेगरी है। इनसे आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं आप क्या अपने आप के बारे में। नंबर 1 फ्रेंड्स, वो तो अच्छा ही बोलेंगे आपके बारे में। एंड नंबर 2 एनिमीज है, वो कभी अच्छा नहीं बोलेंगे आपके बारे में। नंबर 3 कैटेगरी है एनिमी लाइक फ्रेंड्स। वो एनिमी दिखते हैं, दुश्मन दिखते हैं, मगर फ्रेंड्स है, क्योंकि वो डायरेक्ट कमेंट कर देंगे आप पे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेयरिंग अ वंडरफुल ब्यूटीफुल ड्रेस, आपको अच्छा लगा कोई ड्रेस, वो पहनकर चले गया, और आपका एनिमी लाइक फ्रेंड बोलेगा, 3rd कैटेगरी वाला, अरे क्या पहना है यार, ये क्या होलिया बना रखा है, ये क्या शर्ट है, क्या पैंट है, कैसा दिख रहा है, सीधा बोल देगा, आपको पसंद नहीं आएगा, आप दुश्मन समझ बैठोगे, मगर वो आपका बेनिफिट कर रहा है। सो एनिमी लाइक फ्रेंड्स है लोग। और 4th है फ्रेंडली एनिमीज, ये बहुत ही प्यारा मीठा बात करेंगे, ओके, मगर अंदर से दुश्मन। ये 4था कैरेक्टर है, इनसे बहुत बच के रहना है। हर जगह, इंडस्ट्री में, एकेडमिक्स में, हर जगह ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मगर पहचानना मुश्किल है, क्योंकि बहुत फ्रेंडली रहते हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर जाते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा, समझ में आया तक बहुत देर हो चुका होगा, इट विल बी टू लेट। सो फ्रेंड्स, एनिमीज, एनिमी लाइक फ्रेंड्स, फ्रेंडली एनिमीज, ये 4 लोगों से आपको पता चल जाएगा। और नीचे जाइए, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज, थ्रू सेल्फ असेसमेंट। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग करते हैं। कितने प्रतिशत भारतीय अपने आप को परखते हैं? सेल्फ असेसमेंट परखते हैं क्या?
कितने लोग करते हैं, और हाउ ऑफन, कितने बार करते हैं, और कितना सही है ये असेसमेंट, ये सोचना है। अभी लेफ्ट साइड में आ जाइए, बॉटम लेफ्ट, थ्रू क्रिटिसिज्म, व्हेनेवर देयर इज क्रिटिसिज्म, क्या कहते हैं हिंदी में, आलोचना ना, क्रिटिसिज्म, यस, आलोचना, राइट, क्रिटिसिज्म, हेलो, हाँ सर। जी सर, Yes. आलोचना। Yeah, so through criticism also you can understand what is happening to you and what are you. Okay, then top left में देखिए, self assumption, आप जो assume कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, एक assumption होता है, मैं सोचती हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, ये self assumption है, accuracy नहीं है वो आप सोच रहे हैं आप ऐसे हो, मगर बाकी दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपको पता नहीं। So you never understand yourself unless you thoroughly do assessment of yourself. Okay, कोई शक इधर? Any doubts, comments? How can you know May yourself? I ask you one question, sir? Yeah, please. अपने आप को May I introduce ask you one कीजिए question, और sir? बताइए। Yeah, where are you from, Sir, myself sir? आप Damodar पूछ Kumar लीजिए, from. आप पूछिए। हाँ जी, Okay, बोलिए fine. So, can I know any technique through which we can do a self-assessment? Yes. Is Yes. there any way to self-assess ourselves? Yes. There is tool. There are many tools actually. Psychology department है, उधर ही बैठे हैं बड़े बड़े ज्ञानी लोग, उनसे भी पूछ सकते हो, और हमारे पास भी एक दो टूल है, वो भी बताऊंगा। थोड़ा रुकिए, मैं वो असेसमेंट टूल पे जा रहा हूँ। ओके, सो ये पूरा डिस्कशन जरूरी है अपने आप को जानने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग देयर ऑन। ओके सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, या अभी देखिए, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट्स, माय टीचर्स बिहेवियर जस्ट बिफोर एग्जाम। मैं थोड़े एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हमारे एक टीचर थे, लेक्चरर थे पीजी में, एंड ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। का माइक ऑन हो गया काम। हेलो, कैन यू हियर मी सर, मैडम? Yes, sir. हाँ, यस। सो हमारे एक टीचर थे पीजी में, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, बिफोर वी आर एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल क्लासरूम, वो वहां पर ठहरते थे रास्ते में, जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल। अब फाइनल ईयर था, we have exams and you all of you understand when there is exam we are worried actually, बहुत टेंशन होता है ना, एग्जाम है, कैसा होगा, वो होगा, पेपर्स है, परीक्षा देने जाना है, कैसा है, ये सब टेंशन रहता है। So we used to be in that same situation, and whenever we are entering into the examination hall, he used to stand there and we used to say namaste sir, yes, good morning, how are you, fine sir, so पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया सर, देखते हैं कितने नंबर मिलते हैं, let me see how many marks you are going to score, ये कहते थे। फिर और दो तीन चार लोग आते थे, गुड मॉर्निंग सर, हाँ पढ़ लिया? यस सर पढ़ लिया, देखते हैं कैसा होगा नतीजा, रिजल्ट कैसा रहेगा, मैं भी देखूंगा, बहुत पढ़े हो ना, हाँ लिखो, देखता हूँ। सो एवरीबॉडी यूज्ड टू बी इन टेंशन, अरे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो गुरु लोग हैं भाई, वहां पर सामने आए हैं एग्जाम के दिन, तो हम पैर छू रहे, नमस्कार बोल रहे, तो आपको क्या करना चाहिए एज ए टीचर? एंकरेज करना है ना, हाँ बेटा अच्छा लिखो, ऑल द बेस्ट, ऐसा बोलते हैं ना। मगर ये गुरुजी अलग थे, मैं देखूंगा कितने मार्क्स स्कोर कर लेगा तुम, हैं देखेंगे। और पहले ही डरे हुए हैं, एग्जाम का टाइम है, और डर के आधा चीज हम भूल जाते, और थोड़े लोग ये भी सोचते थे, अरे सर बोले ना, अरे चलो हम अच्छा लिख के दिखाएंगे, ये दो चीज चलती। अगर आप ऐसे सिचुएशन में रहते हैं एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, आपका रिएक्शन क्या होगा? व्हाट इज योर रिएक्शन? What do you think of such teachers? जल्दी बोलिए, टाइम कम है, बहुत चीज डिस्कस करना है। Yes, anybody? What do you think of such teachers? Understand हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आप
Hello. So there can be both positive and negative impact on the students. Both the impacts can be possible. हाँ सर, कोई भी बोल रहे हैं ना अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं, थोड़ा बताइए सर सबके लिए। So from Subhas B.Ed College, sir. कहाँ से? Subhas B.Ed College. Subhas B.Ed College. कहाँ पर है ये? Jharkhand, Giridih. Very good, very good. हाँ बोलिए। Yes, sir. So there can be both positive and negative impact as well on the students, and it depends on the individual students. Some students can take it as a challenge also, and few students get demotivated. The students who have the who is having their willpower, they will get they will take it as a challenge. But the students who have who lacks willpower, they will get demotivated by these kind of comments. Very nice. So यही हुआ सर, हमारे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अरे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो रात भर बैठ के पढ़ लिया, I worked a lot and now teacher is saying let me see कितना मार्क आएगा, मैं भी देखूंगा, वही ये वो बोल रहे क्या हो रहा, ऐसा हम सोचते थे। मगर अंत में क्या हुआ, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आया, 62%, 65%। हमारे जमाने में 60 कोई पार कर लिया तो पूरा गांव उनका एक जुलूस निकालता था, भैया इनको 60 के ऊपर चले गए मार्क। आजकल तो 90, 95 का भी कोई अहमियत नहीं रहा, और हमारे जमाने में 60 मतलब बहुत बड़ी बात। सो फर्स्ट क्लास मार्क्स जिसके भी आए वो हिम्मत करके वही लेक्चरर के पास गए मार्कशीट लेके, सर जी देखिए हम तो फर्स्ट क्लास लाए सर देखो। देन टीचर यूज्ड टू से बेटा ये मार्क तुम्हारे हैं कि हमारे हैं, ऐसा बोलते। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उस दिन क्या किया था, मैं दरवाजे पे खड़े होके मैं बोला था कितने मार्क आएंगे देखता हूँ, उसलिए तो तुम जाके लिख पाए ना, नहीं तो लिख पाते थे क्या? उसको चैलेंज लिया उसलिए तुम लिखा, जो चैलेंज नहीं लिया और टेंशन में गया वो नहीं लिख पाया। तो मैं तो मोटिवेट कर रहा था तुम लोग। अब कितने लोग ये पॉजिटिवली लेंगे, कितने लोग नेगेटिव लेंगे, ये अपने ऊपर। वहीं पर आपका सेल्फ इवैल्यूएशन, in every situation that you are facing, your self evaluation or others evaluation will be done. That's how you will understand yourself better. Okay, next देखिए, my mother and father at school. बचपन से मैं हमारे माँ बाप के पास ही पढ़ा हूँ, माता जी पिताजी, और मॉर्निंग असेंबली होती थी, 1000 स्टूडेंट्स रहते थे। अपनी बात कर, जस्ट एन एग्जाम्पल, एंड शी वाज द हेड मिस्ट्रेस, माय मदर। और अर्ली मॉर्निंग बुलाकर एक 4-5 नाम बुलाते थे, कल जो लोग शरारत किए ना उनको असेंबली में, सब भरी सभा में सामने बुलाया, आप आई, और बुलाकर बोलते थे कल क्या किए, हाँ ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ। अगर गलत रहता था तो सबके सामने एक कान के नीचे आवाज आती थी, सबके सामने, बॉयज भी है गर्ल्स भी है, 1000-1200 स्टूडेंट्स है, उनके सामने। इमेजिन कीजिए अपना स्कूल में अगर अपना टीचर और हेडमास्टर सबके सामने एक चाटा मारते, क्या हालत हो जाएगा वो बच्चे का? रिस्पॉन्स दीजिए। कुछ तो ठीक नहीं लगता ना, थप्पड़ खा रहे हो ना। Embarrassing, sir. It's embarrassing. हाँ, वेरी गुड। और बताइए ओपिनियन। खुद को शर्मिंदा महसूस करेगा। और नेक्स्ट क्या करेगा? लगेगा सर, उसको ह्यूमिलिएशन लगेगा। मैडम बोलिए जोर से बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, बताइए। ह्यूमिलिएशन फील होगा ना? हाँ, ओके। तो हमें भी कुछ लगता था मगर छोटे थे। देन इवनिंग जाकर पिताजी को बताते, डैडी क्या हुआ पता है, आज सुबह ना ऐसा हुआ वैसा हुआ। और दोस्तों के ताने वो अलग, मार खाने के बाद ऑलरेडी दर्द हो रहा है, मगर वो जमाने में किसी की हिम्मत नहीं थी, अगर टीचर आपको चाटा मारते हैं तो उल्टा जवाब देना या उल्टा उनके ऊपर कुछ बोलना, वो सब नहीं था। वो जमाने में था ही नहीं, वो फितरत, वो कैरेक्टर नहीं था। आजकल के जमाने में छोटा बच्चे को आप कुछ बोल दीजिए, वो इमीडिएट रिएक्ट करेगा। ये क्यों हुआ? साइकोलॉजी वाले, बिहेवियर वाले वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो शेयर कर रहा हूँ मेरा एग्जाम। तो ताने मारना, बाकी क्लासमेट सब लोग एक के ऊपर एक जोक मारना, देखो सबके सामने इसको चाटा पड़ा, वो ये। और मुझे पता है वो हमारी माता जी और हेडमिस्टर भी,
हेडमास्टर भी है, फिर भी हम सर उठा के देखे नहीं, हिम्मत कभी नहीं किया, आंख मिला कर बात नहीं किया। ओके, देन शाम में जाके पिताजी को बताते, डैडी डैडी पता है क्या हुआ, सुबह सुबह सबके सामने मुझे मार पड़ी मम्मी से। अच्छा बेटा क्या किया तूने? मैं कुछ नहीं किया डैडी। और एक कान के नीचे आवाज आता था, दाएं तरफ या बाएं तरफ, तो इधर से एक मारना, उधर गिरना, उधर से एक लात पड़ा, इधर गिरना, ऐसा गिरते उठते आज हम प्रोफेसर बन गए। तो कहने का मतलब ये है, सॉफ्ट स्किल्स बहुत हार्ड तरीके से सीखा है। पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं ना लोग, वो किताब में पढ़ने से नहीं आएगा, उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये भी एक ट्रेनिंग था। और फिर शाम में बुला के बोलते थे, पता है बेटा मैं सबके सामने क्यों मारी आप? हाँ पता नहीं, हमको तो बहुत गुस्सा आया, क्या है? नहीं बेटा, बल्कि ऐसा ऐसा करके तो बोलते थे, बेटा देखो हम हेडमास्टर है, अगर आप बेटे है करके हम छोड़ देते तो बाकी लोग क्या कहते? बेटा आपका बच्चा है इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हो, बाकी लोगों को तो बहुत पनिशमेंट देते हो मैडम, ये सुनना पड़ता। एज ए टीचर आई शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इसलिए मारा बेटा, कुछ नहीं समझ। ये सीख हमको दिया गया, आज तक भी वही चल रहा है फितरत। आंख उठा के देखेंगे नहीं, उल्टा जवाब देंगे नहीं, आप मार लो चाहे जान ले लो। मगर ये टेंडेंसी आजकल के जनरेशन में नहीं है। आजकल जो भी टीचर बनने की हिम्मत कर रहे हैं ना, उनको ये एक्सपीरियंस काम आएगा। ओके, ईगल एंड चिकन। और एक छोटा स्टोरी है मेरे पास, अब समय तो चल रहा है मगर आप बता देना, जहां रोकना है वहां रोकिए, क्योंकि मैं तो टाइम से चलूंगा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हमारे से। ओके, ईगल एंड चिकन, एक स्टोरी है। देयर इज अ पर्सन हु इज अ सेज सेंट, स्वामी जी थे, उनके घर के सामने, झोपड़ी के सामने एक बड़ा वृक्ष था। तो वो वृक्ष के ऊपर, वो ट्री के ऊपर के डाली पे ईगल, बड़ा पक्षी होता है ना ईगल, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर पिक्चर दिया हूं मैं, ईगल बहुत बड़ा पक्षी होता है, वो ऊपर जी रहा था वो वृक्ष के ऊपर, और उनका घोंसला भी था, उनके बच्चे सब परिवार ऊपर रहते, और नीचे बॉटम ऑफ द ट्री एक हेन और क्रो सब रहते नीचे, चिकन, उसका फैमिली। ओके, सो क्या हुआ, एक दिन एक्सीडेंटली ईगल का अंडा बाय मिस्टेक स्लिप होके नीचे जमीन पर जो घोंसला बना हुआ था इसका, क्या कहते हैं उसको, चिकन हेन का, उसके घोंसले में वो ईगल का अंडा गिर जाता है। थोड़े दिन के बाद द एग इज हैच, छोटे छोटे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, तो ऊपर ईगल को पता नहीं है कि उन लोगों का अंडा नीचे गिर गया है, और चिकन को भी पता नहीं है, मदर हेन को भी पता नहीं है, और फादर कॉक को भी पता नहीं। मगर ये बाकी बच्चों के साथ, ये छोटे बच्चों के साथ ईगल का बच्चा भी बढ़ रहा है। मगर आप सबको पता है ईगल का फितरत क्या है, वो तो जमीन पर जीने के लिए पैदा नहीं हुआ, भगवान ने उसको जमीन पर जीने के लिए पैदा नहीं किया है। वो बहुत ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, बहुत हाइट पे जाएगा, जब पानी बरसता है बादलों के ऊपर चले जाएगा। ये पक्षी, ये जाति के पक्षी ऐसे हैं, वो पानी से भी नहीं डरते। बाकी पक्षी भीग के कहीं बैठ जाते हैं, मगर ये क्या करता है पता है, सबसे अलग है, वो पानी से भी ऊपर चले जाता है। बादलों के नीचे पानी है ना, बादलों के ऊपर पानी तो नहीं है, यस सर नो, तो इट विल फ्लाई अबव द क्लाउड्स सो दैट इट कैन नॉट गेट वेट। उसका फितरत है, नेचर में ऐसे भी पक्षी है। तो ऐसा पक्षी है वो, उसका बच्चा बाय मिस्टेक चिकन के फैमिली में पैदा हो गया और वहीं पर बढ़ रहा है। अब रोज वो ऊपर देख रहा है, मदर आती है, क्यों बेटा आसमान में क्यों देख रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है माँ। नहीं बेटा, डैडी देख लिया ना, सर पे एक मार पड़ेगा बेटा, नीचे देखो, और बाकी देखो चिकन कैसे है, वो छोटे छोटे बच्चे नीचे कचरे में कूड़े में से कीड़ा लेके खा रहे हैं ना, आप भी ऐसा। इमेजिन, ईगल का बच्चा कभी भी वो छोटे छोटे चीज नहीं खाता है, वो बड़े बड़े चीज खाता है। एक एक बकरी को उठा के ले जाते हैं, वो ईगल बहुत बड़े रहते हैं एक्चुअली, और चिकन को उठा के ले जाते हैं। और ये क्या पिजन रहता है ना, पिजन को क्या कहते हैं हिंदी में, उसको भी उठा कर ले जाते हैं। सो ऐसे पक्षी है, उनको चिकन का जिंदगी जीना पड़ रहा था इस स्टोरी में। और दूर से स्वामी जी देख रहे हैं सब, अरे क्या हो रहा है, ये ईगल का बच्चा तो हमेशा आसमान में देख रहा है, और इसकी मदर इसको कंट्रोल कर रही है, बेटा मत देखो। फिर फादर आते हैं एक बार। अब मदर को कितने बच्चे सुनते हैं आजकल के जमाने में, पता नहीं। तो पिताजी आते हैं, क्या हुआ बेटा? ना, मैं ऊपर देखना अच्छा लगता है पिताजी।
एक कान के नीचे देते हैं, सर नीचे कर और वो कचरे में जा। जैसे बाकी बच्चे वहां पर कचरा कूड़े में से कीड़े खा रहे हैं ना, आप भी खा लो। तो उसको पसंद भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, फिर भी खा रहा है मजबूरन, जबरन के बोलते हैं ना आप लोग, ऐसा कर। तो ईगल ऊपर उड़ रहा है और उसके बाकी बच्चे भी ऊपर उड़ रहे हैं, और ऊपर जो भी बड़ा बड़ा चीज खाना है उनको मदर के साथ वो खा रहे, फादर के साथ। और ये ईगल का बच्चा बाय मिस्टेक चिकन के घोंसले में गिर गया और वहीं पर पल रहा है और कचरा कूड़े में गिरा। उसका जिंदगी सीमित हो गई, लिमिटेड टू ग्राउंड। मगर उसकी क्षमता और कौशलता बहुत बड़ी है, और ये कौन पहचानेगा? चिकन और ये हेन के लिए तो पता नहीं। तो स्वामी जी देखते हैं इसके साथ तो ज्यादती हो रहा है, तो दिन में पूरा कंट्रोल कर पाते हैं, रात में सब सोने के बाद ईगल का बच्चा उड़ जाता है और ऊपर उड़ने लगता है और ऊपर की डालियों के ऊपर भी चले जाता है। तो ही इज ट्राइंग टू फ्लाई, क्योंकि उसका फितरत है, इट इज डिस्टाइंड, इट इज डिजाइंड टू फ्लाई हाई, दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू फ्लाई हाई। और ये सब स्वामी जी देखते हैं। देन रात में पिताजी उठ जाते हैं, और बच्चे कितने भी होशियार हो, उनसे ज्यादा होशियार पेरेंट्स रहते हैं। तो फादर उठ जाता है, ये किधर गया बच्चा, बाहर देखता है तो ये फुतक रहा है, यहाँ से उधर, उधर से इधर, डालियों पे कूद रहा है, फ्लाई ऊपर एक फ्लाई चक्कर मार के फिर आके नीचे बैठ रहा है, ये सब देख लेता है। तो पिताजी को बहुत गुस्सा आता है चिकन का, वो हेन का। तो बुलाते हैं, क्या कर रहा है बेटा, दिन में मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो रात में होशियारी दिखा रहा है। और एक कान के नीचे आवाज आती, फिर वो कंट्रोल हो गया। तो उड़ने का ख्याल भी छोड़ देता है, थोड़े दिन के बाद उड़ना भी बंद, ऊपर देखना भी बंद, कचरा कूड़े में जीने लगता है। तो देयर आर मेनी पीपल, मे बी इन द क्लासरूम, मे बी इन द ऑर्गेनाइजेशन, मे बी इन एकेडेमिया, मे बी यूनिवर्सिटी, मे बी कॉलेज, उनकी क्षमता बहुत है, कौशलता बहुत है, मगर पहचानने वाला नहीं है। और बाकी लोग भी जो सराउंडिंग में हैं, कलीग्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बैचमेट्स हो सकते हैं, उनको भी ये पहचानने की समय नहीं है, इच्छा नहीं। तो क्या हो रहा है, there are many people who are like eagle, more powerful, they can go to any height, more skill, more knowledge, but they are living the life of a chicken. So स्वामी जी ये सब देखकर उनको अच्छा नहीं लगता है, वो जाके वो ईगल का बच्चे को हाथ में ले लेते, ऊंची पहाड़ पर चले जाते हैं और हवा में उसको छोड़ देते। एंड ईगल, वो आपको उसको ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं है, वो तो पैदा ही हुआ है ऊपर उड़ने के लिए, तो ऊपर उड़ जाता है। So that is the end of story. हाँ, इस पे आपका कमेंट्स बताइए, ईगल और चिकन, जल्दी। आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए एक सही मार्गदर्शक गुरु की जरूरत होती है। सर मगर कौन पहचाने, वो मार्गदर्शक से पहले और कोई जरिया है पहचानने का? अपने आप को पहचान सकते हैं क्या हम? और कोई पहचान सकता है? कौन सा टाइम में पहचाने, कब पहचानेगा? सेल्फ इवोल्यूशन ही करना पड़ेगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। We should explore our abilities continuously, frequently, and continuously. We should explore our abilities that we have. That means we should try new things, sir, so that we can explore ourselves. This can be one way, maybe. Yes, sir. बहुत बढ़िया। ओके, एनी अदर रेस्पॉन्सेस? अब बाकी लोग जो भी हैं, शिक्षक है या शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके लिए ये सोचने की आवश्यकता है कि कौन ईगल है, कौन चिकन है। कौन ईगल जैसा दिखने का कोशिश कर रहा है, रियल में है क्या, या एक्टिंग कर रहा है, और कौन चिकन है, हेन है, ये सब पहचानना पड़ेगा। देन एज अ टीचर योर ड्यूटी विल बी फाइन। और एक स्टोरी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईगल। ये क्या है? ये ईगल का और एक बहुत बड़ी खासियत है, ये पक्षी ऐसी है 70-80 साल तक जी सकता है, और बहुत बड़े बन जाते हैं इनके पर, वो सब, उनके पंख भी, एक पंख 3-4 फीट बड़ा भी हो सकता है, लेफ्ट वाला राइट वाला मिला के नियरली 7-8 फीट वो ऐसा फैल सकता है, बहुत बड़ा है। और वेट भी बहुत रहता है, काफी ज्यादा रहता है। और इंडिया में ये कम हो गए हैं आजकल, मगर है कहीं कहीं। गरुड़ पक्षी कहीं कहीं इतिहास में सुनने में आता है, रामायण में भी उनका जिक्र है। ओके, बहुत बड़े पक्षी हो। सो क्या होता है, 40 साल की उम्र में ये इतना उसका वेट बढ़ जाता है और उनका चोंच भी कमजोर हो जाता है।
दे कैनॉट हंट, क्योंकि वो चोंच से ही पूरा काम है। वो किसको भी शिकार करते हैं तो चोंच से ही खाना पड़ता है, और चोंच वीक हो जाता है 40 साल की उम्र में, ये पक्षी पर्टिकुलरली। देन उनके टैलेंट्स जो है, टैलेंट्स मतलब ये विंग्स है ना, उनके पर, पंख, उसमें जो बड़े बड़े ये क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पंखी कहते होंगे, फेदर्स, वो भी बहुत हेवी हो जाते हैं और उड़ने के लिए मुश्किल हो जाता है। ये समय ऐसा आता है कि उसको उड़ने के लिए मुश्किल है और शिकार करना मुश्किल है, और इनके पास तो कोई बार कोई इलाज करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं लोग, दे गो टू टॉप ऑफ अ माउंटेन। नीचे पिक्चर देखिए, स्लाइड में दिख रहा है। दे गो टू टॉप ऑफ वन माउंटेन, जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता है। एक बड़ा पहाड़ पे चले जाएंगे, किसी गुफा पे में चले जाएंगे, वहां जाकर एक बहुत बड़ी दर्दनाक प्रक्रिया है वो करना पड़ता है। क्या है, पहले तो उनका बीक जो चोंच है उसको स्ट्रांग बनाना है। कैसा स्ट्रांग बनेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो मेहनत करना पड़ेगा। सर्जरी कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो अपने आप को, हाँ, yes, so some are requesting for English also, so I have to speak in Hindi and English because this is a bilingual session. I think Munir is online, but yes sir, I am trying to speak in both languages because many Hindi speaking people are there. Try to bear with me, I am translating in Hindi and English also. चार्ट में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अंग्रेजी में बोले, so हम कोशिश करेंगे. Yes, okay. So this eagle has to be, somebody should do a surgery, then only its beak can become strong. At a certain age, 40, 41 years age, this eagle becomes very weak. Ibrahim sir, Mr. Munir. So what happens? It has to change the beak. How can it change the beak? Somebody should perform the operation. Nobody can do. So what it does, it goes to top of a mountain or it goes into a cave and tries to break its own beak. अपना चोंच को खुद ही वो तोड़ डालता है पत्थर पे मार मार के. बहुत पेनफुल सिचुएशन है and very painful work task actually. Nobody can do. Imagine you are hitting yourself to a wall or you are hitting your nose against a rock. What happens? It will break and you will bleed, right? Same thing happens. Same thing happens to this seagull also. It will break its own beak. 10 times, 20 times it will hit and the whole beak is shattered and broken into pieces and it comes out and it falls down. It becomes unconscious. गिर जाता है. And nobody is there to give medicine or antiseptic, virus, antivirus, nothing is there. It is just alone. Nobody can reach there also. Such a top hillock. Okay. It chooses such a place where nobody can come. And self-transformation it does to itself. See what a creature it is. Then after some days, maybe 20 days, 15 days, the new beak is grown again. Stronger beak. With that beak, it will pluck its own feathers. अपने आप को पूरे जो पर है वो पूरा खींच लेता है. पुनः खून हो जाता है. And it becomes very painful. With its own beak, it is trying to pluck its feather. It does. Every eagle bird does that. Even kite also may do. Baaz bhi rehta hai, they also may do. But this is the particular characteristic of eagle. Then it will pull out all the feathers, talons, and waits for another 30 days. Then new feathers and new talons are grown. Now it is a powerful bird, transformed bird, new beak, stronger beak, and new talons, new feathers. Now it can fly another 20-30 years. So this is called transformation. When a bird like eagle can do it to itself, why can't human beings do this? In leadership also we give this lesson, leadership topic. Then in transformation of individuals, in education department also, as a teacher, we have to transform the individuals. And to do that, we have to transform ourselves. Our own skill set, our attitude, our knowledge should be transformed because we are teachers. शिक्षक है, तो पहले अपने आप को बदलना है before
we want to change others. Okay, any comments, any doubts, any queries here? Yes sir, anyone? सर आप हिंदी में समझा रहे थे तो समझ में आ रहा था, अभी इंग्लिश में स्पीक किए तो समझ में नहीं आया. That is the thing. Actually, there are people from other states also. दूसरे स्टेट से भी बैठे हैं, कोई बाहर से भी बैठा है, इसलिए अंग्रेजी में जाना पड़ रहा है. वो समझ गए होंगे आप स्टोरी. ये ईगल बर्ड जो है अपने आप को अपना चोंच तोड़ लेता है स्ट्रांग बनाने के लिए, और अपने पंख भी तोड़ लेता है अपने आप 40 साल के बाद, क्योंकि उसको नया बनना है और स्ट्रांग बनना है, और कोई करने वाला नहीं है, अपने आप को बदलना है तो ही वो जी सकता है. तो पंख खींच लेता है, नए पंख आए तक वेट करता है, चोंच तोड़ लेता है, फिर नया चोंच आ जाता है, तब वहां से निकलता है वो. नियरली 90 days to 120 days का प्रोसेस है. अपने आप को ये मार मार के सीधा कर लेता है. So this is the story of eagle. Yes, any comment, any questions here? As a teacher, हमको भी ये करना है, ट्रांसफॉर्म करना है. Before trying to change others, हमको भी बदलना पड़ता है. should Yes. transform Anybody? ourselves. Yes, sir. We should transform ourselves with time and sharpen our skills again and again. Sir, there is a disturbance in your voice, background noise. Please ask again. Sir, we should sharpen our skills, transform ourselves time to time. Yes, sir. Yes, sir. We have to transform ourselves from time to time. अपने आप को बदलना है. हाँ, चलिए next. Here we have to talk about Maslow's hierarchy of needs. इंसान के क्या क्या जरूरतें हैं? As per Maslow, these are the hierarchies from bottom to top. आप नीचे से देखिए पिक्चर में. Physiological needs, safety and security needs, love and belongingness needs, then self-esteem needs, self-actualization. Self-actualization is understanding your morality, creativity, spontaneity, acceptance, experience, purpose, meaning and inner potential. ये जानने के लिए you have to cross the 3-4 levels from bottom. But understanding self, जो topic दिया गया, वो समझने के लिए actually you have to understand all the needs. Based on these needs, human beings are living the life. ये सब इंसान के जरूरतें हैं. मास्लो हायरार्की थ्योरी में बताया गया. फिजियोलॉजिकल नीड मतलब कोई ट्रांसलेट करे प्लीज इन हिंदी. शारीरिक फिजियोलॉजिकल नीड्स. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ये भी एक जरूरत है आपका. सेफ्टी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली, स्टेबिलिटी, ये सब जरूरी है इंसान के लिए. नंबर 3, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स. फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, कनेक्शन, आपके रिश्तेदार, all these things are also important. Self-esteem, this is a dangerous thing because self-esteem is also understood as ego by some people. Self-esteem, अपने आप पर विश्वास है आपको, but others will think look at it like ego. Okay, self-esteem needs confidence, achievement, respect of others, connections, need for individual. ये सब मिलाकर self-esteem needs हो गए. Then comes at the top of the pyramid self-actualization. What is it? Morality, creativity, spontaneity, acceptance, experience, purpose, meaning and inner potential. आपका inner potential, अंदर का जो शक्ति है, अगर आप समझ जाओगे, then you will reach that self-actualization potential. Sir, कोई noise आ रहा है, background noise, please थोड़ा check कीजिए. Somebody's mic is on or what? Madam? कुमार जी प्लीज म्यूट कीजिए आप, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपके यहाँ से. Yes. विजेंद्र कुमार. विजेंद्र Okay, कुमार जी thank you, म्यूट thank you. कीजिए. और सभी लोग अपने माइक चेक कर लीजिए ना, म्यूट है कि नहीं प्लीज. बिमल जी भी म्यूट नहीं है. It's okay, madam. Let's proceed. Okay, but आजकल इंसान के जरूरतें क्या हो गए हैं? ये सब जरूरतें हैं. फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, सेल्फ एस्टीम, ये सब जरूरतें हैं. मगर आजकल कुछ ज्यादा ही हो गए जरूरतें.
अभी आजकल कोई पानी पिया, खाना खाया, कोई नहीं पूछ रहा है इंटरनेट है क्या, आप व्हाट्सएप है क्या, एंड आर यू ऑन फेसबुक, आर यू ऑन लिंक्डइन, और आप टेलीग्राम में हो क्या, ये पूछा जा रहा है। और कोई घर पे आ जाए गलती से, आजकल घर को किसी और के घर जाना भी मुश्किल हो गया, लोग बुलाने भी बंद कर दिए कोरोना की वजह से, मगर अगर कोई आ गया तो पहले पूछेंगे कि वाईफाई है क्या आपका घर में, अच्छा नेटफ्लिक्स चल रहा है। सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स बदल गया। फर्स्ट में भी योर सोशल सिक्योरिटी जाके सोशल मीडिया आ गया, ये फिजियोलॉजिकल निकल गया, टेक्निकल नीड्स आ गए, और सेल्फ एस्टीम कहाँ गया पता ही नहीं। And all your personal things are appearing on Facebook, or people are changing your face on the book. Facebook में ये भी हो रहा है। Social media has become very dangerous. आपका पासवर्ड चुराया जाता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, then anything can happen on social media. And real दुनिया से सोशल मीडिया स्टेटस ज्यादा हो गया आजकल। कितने लोग आपका लाइक किए, आप जो शेयर किया फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ट्विटर पर, कितने लोग शेयर किया, this has become the status, real status. So something different हो रहा है दुनिया, इसमें understanding self is becoming very very difficult. This is the map of Maslow's hierarchy. It is given with a lot of details. So Abraham Harold Maslow, 1908-1970, was a psychologist who studied positive human qualities and the lives of exemplary people. In 1954, Maslow created the hierarchy of human needs and expressed his theories in his book Motivation and Personality. ये जरूर पढ़िएगा, शिक्षकों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। Then he talked about self-actualization, a person's motivation to reach his or her full potential. जब अपने आप को पूरी तरह से आपका potential पहचान जाओगे, that is called self-actualization. As shown in Maslow's hierarchy of needs, a person's basic needs must be met before self-actualization can be achieved. ये कहते हैं अगर टॉप में जो लिखा हुआ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वहां तक पहुंचने के लिए a person's basic needs must be met. ये नीचे जो चार है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम, ये सब अगर भरपूर हो जाए, फुलफिल हो जाए, then you will reach to self actualization. मगर अपना टॉपिक ही है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, वहां तक पहुंचने के लिए ये सब जरूरतें पूरा होना बहुत जरूरी है। बट द नीड्स आर चेंजिंग, एज आई टोल्ड यू, जनरल नीड्स, ऑर्डिनरी नीड्स नहीं रहे अभी, बहुत बहुत सोच रहा है इंसान अपने आप को, बहुत चीज चाहिए। ओके, अब 1 मिनट में इंटरनेट पे क्या हो रहा है देखिए, राइट साइड देखिए, दिस इज 2013-14, राइट साइड वाला विजुअल, 1 मिनट ऑन द इंटरनेट। ईमेल 2,04,40,00,000 ईमेल्स 1 मिनट में उधर इधर जाते हैं। गूगल रिसीव्स 40 लाख सर्च क्वेरीज, 40 लाख सर्च क्वेरीज मिलते हैं गूगल को 1 मिनट में। यूट्यूब यूजर्स अपलोड 72 आवर्स ऑफ न्यू वीडियो, 1 मिनट में वर्ल्ड वाइड 72 आवर्स का वीडियो अपलोड होता है। Amazon makes $83,000 in 1 minute. Amazon पे जो शॉपिंग कर रहे हैं ना, ये 2014 का डेटा है, राइट साइड। So 2.4 billion people now are online at that time. 2014 की बात कर रहे हैं तो 2021 है। ओके, लेफ्ट साइड में देखिए, दिस डेटा इज एज ऑफ अप्रैल 2020। द इंटरनेट रीचेस 59% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, सो नेटफ्लिक्स देखिए, 4,04,444 आवर्स ऑफ वीडियो इज स्ट्रीम्ड अक्रॉस द ग्लोब, वो दिखाया जा रहा है। यूट्यूब देखिए, 500 आवर्स ऑफ वीडियो इज अपलोडेड एवरी मिनट, ये खाली 1 मिनट का ये है काउंट। फेसबुक यूजर्स आर शेयरिंग 1,50,000 मैसेजेस अक्रॉस द ग्लोब। अमेजॉन राइट में देखिए, अमेजॉन $83,000 थे, अभी कितना हुआ देखिए। अमेजॉन शिप्स 6,659 पैकेजेस 1 मिनट में। व्हाट्सएप 41,66,000 and the remaining number messages are shared by WhatsApp users. Consumers spend
10 लाख डॉलर्स ऑनलाइन 1 मिनट में वर्ल्ड वाइड, आप देखिए। सो इतना स्पीड में जब दुनिया चल रहा है, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, इज इट हैपनिंग, इज इट पॉसिबल? नीचे क्वेश्चन देखिए, आर वी लूजिंग आवरसेल्व्स इन द स्पीड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी? अपने आप को क्या हम खो रहे हैं ये डिजिटल स्पीड में, ये टेक्नोलॉजी में? इंसान बचा है क्या? कितना बचा है? इज देयर इनफ टाइम टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर ह्यूमन बीइंग्स? आपके पास समय है अपने आप को परखने का, सोचने का और दूसरों के बारे में सोचने का? समय बचा है क्या? These are the questions, because as teachers the onus is more on us, on our shoulders. क्योंकि ये जनरेशन जो है, ये नई पीढ़ी बहुत बहुत एडवांस है, ये सब यूज कर रहे लोग। यहाँ जो जितने भी दिखाया गया स्लाइड में, वो स्पीड को आप कैच कर सकते क्या? और उसमें अपने आप को समझना, दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अस, ourselves and understanding others. Is it possible? अभी ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात कर। As all of you know, or many of you know, human brain is divided into 2 parts. 2 भागों में बांटा गया ना ह्यूमन ब्रेन, 2 हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट एंड राइट। ये नेचुरल है, किसी ने बनाया नहीं, हमारे हाथ में तो नहीं है, भगवान के हाथ में। लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स होते हैं अंदर। फंक्शन क्या है? लेफ्ट, लॉजिकल ऑन द लेफ्ट साइड, क्रिएटिव ऑन द राइट साइड। ये ह्यूमन ब्रेन का चीज है। हाउ डू कॉग्निटिव फंक्शंस टेंड टू बी डोमिनेटेड बाय वन साइड और द अदर? और राइट साइड लेफ्ट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और लेफ्ट साइड राइट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इंसान के दिमाग में ऑलरेडी इनफ टेंशन है, कश्मकश है, कंपटीशन है, और आप दुनिया से भी लड़ रहे हो, बाहर से, अपने आप से लड़ रहे हो, बाहर दुनिया से लड़ रहे हो, कलीग से लड़ रहे हो, करियर में लड़ रहे हो। Everywhere that fight is on, that competition is on. But internally, in the mind itself, there is enough struggle, right and left brain. मगर silently the brain is doing its job. Even when you are sleeping, the brain is working still. उसको 1 मिनट का रेस्ट नहीं। किसी दिन अगर रुक गया 1 मिनट के लिए ब्रेन, तो अंत है, क्योंकि हार्ट भी वही चला रहा है, पैर भी वही चला रहा है। You are thinking, you are walking, you are eating, everything is done because your brain is functioning properly. And as teachers, we are dealing with the brain, not with the physics, not with the body. Please understand, all the teachers, B.Ed, M.Ed वाले जो भी है, okay, would be teachers है और existing teachers है, we are dealing with the brains of human beings. How do cognitive functions tend to be dominated by one side or the other? Try to understand. How are they lateralized? Lateralized means special, out of the box thinking. Where do we hit the learner or individual? Where do we hit? कहाँ पर आप जोर देते हैं, कहाँ मारते हो इंसान को, इंडिविजुअल को, while teaching or while learning? Right side or left side or both? ये सोचना है। और भी इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे रेफरेंस दिया हूँ, प्लीज लुक एट द रेफरेंस and try to understand more. And right brain functions are a long list is there: creativity, imagination, holistic thinking, etc. Left side देखिए, logical thinking, analysis, sequencing, linear, mathematics, language, ये सब लेफ्ट साइड ब्रेन फंक्शन है। उसलिए बचपन में किसी बच्चे को मारते थे सर पे, तो लोग कहते थे किधर मारा बेटा, किधर मार लगा, राइट और लेफ्ट, और कोई नीचे गिर जाता था, दे यूज्ड टू आस्क राइट और लेफ्ट में कहाँ मार लगा सर पे। तो बच्चों को सर पर नहीं मारना चाहिए। क्यों कहते हैं? Because of this reason. Some functions will be malfunctioned. Next, know your emotional intelligence. अब अपने आप को अगर understand करना है, here we have to talk about emotional intelligence. If you really want to understand yourself or understand others, you must know about your emotional intelligence. इसको संस्कृत में इंटेलिजेंस को प्रज्ञा कहा गया है, और इमोशंस भावनाएं, ओके, एंड लिटरेरी हिंदी में और कुछ वर्ड होगा, जितना मैं जानता हूँ भावनाएं, जो भावनाएं को कंट्रोल में रखता है। अपना इंटेलिजेंस, ज्ञान को और भावनाओं को अगर बैलेंस में रखते हो तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाए। सो बैलेंसिंग योर इमोशंस एंड इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस बाय गोलमैन। डैनियल गोलमैन का थियरी है, आप सब लोग पढ़िएगा जरूर।
Try to interpret your emotions, because without knowing your emotions, you cannot understand others' emotions. दूसरों का आप ना मुश्किल हो जाएगा if you don't understand your own emotions. Never think that you are only correct always. मैं भी सोचता हूँ मैं ही सही हूँ, दूसरा आदमी भी सोच रहा है वो ही सही है. Then what is happening? I am also correct, you are also correct. If both are correct, who is wrong? ये कश्मकश चलते रहता है. Let's do a small assessment. एक assessment कीजिए, पेन एंड पेपर साथ में रखिए और ये विजुअल देखिए, मुझे बताइए क्या दिख रहा है आपको ऑन द स्क्रीन. जी अपना वीडियो बंद कीजिए प्लीज. मिस्टर विकास नर्सरी, वीडियो बंद कीजिए. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Yes, anybody please. What can you see on the screen? दिख रहा है स्क्रीन? Illusion, sir, illusion. Why is it rotating? Sir, it is not घूम रहा है rotating. क्या? घूम रहा है? No, sir. नहीं घूम रहा है? No. ध्यान से Only- देखिए, सेंटर में देखिए, थोड़ा घूमे जैसा लगेगा. हाँ, sir. Sometimes it feels when we move our eyes now, then we can feel that it is rotating. So that is called optical illusion in English. अब एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते, मगर that is called optical illusion. आपको जो दिख रहा है वो है कुछ और है, मगर दिख कुछ और रहा है. Okay? Yeah. Next. How many boats are there under the bridge? यहाँ एक ब्रिज है, थोड़े बोट्स है. How many boats are under the bridge? जल्दी बताइए सर, मैडम, एनीबॉडी. 11. 2 boats, sir. Yes. 2 boats. Anybody? There are many. Sir. But is it Many boats really a are there, bridge? sir. Many. Is it really a bridge? Okay. Okay. Yeah. Actually, is there a bridge? No. No. No, sir. But many people thought there is a bridge and there are boats under the bridge. This is also optical illusion, because your brain is functioning in a different way, and what you are seeing and understanding is different, and what is the reality. जो है वो नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है वो सही नहीं हो सकता है. अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, ऐसा भी नहीं है. So it is a very illusional world. So brain is sometimes very accurate, sometimes it is dreaming, sometimes it is imagining, sometimes it is accurate. So we cannot interpret anybody based on what you see and hear, unless you yourself experience scientifically, unless you assess. It is very difficult to understand or assess anybody. Psychology भी यही कहती है ना, इतने सारे आपके टेस्ट टूल्स है. Yes or no? Anybody from psychology, behavioral science? Answer me please. Scientific assessment is correct or general assumption is correct? The scientific assessment. Okay. Next. अब ये विजुअल देखिए, आपको क्या लग रहा है बताइए. Quickly, anybody? So the girl is interested, but boy is not interested in the girl. Yeah, Two persons are because sitting on a railway track. men think in a different way and women think in a different way. हाँ ठीक है, आपका ख्याल वो है, ठीक है. Any lady please, what do you think of this? कोई महिला? "91 people are there online. Please answer. आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? Yes. 2 What are they persons having thinking? different thoughts, sir. Different hearts है. Okay.
एक्चुअली किसी ट्रेनिंग में मैं पूछा था तो लोग बोले हैं कि वो लोग ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। ट्रेन लेट हो गई इसलिए वहां बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ऐसा भी आया है आंसर। So different ways of thinking. Somebody said, sir, boy is very bad, sir, usle is sitting there and staring at the girl, and girl is very naughty, sir, she is teasing that boy. Different interpretations are there, but which is correct, who can tell? Okay, next वाला देखिए क्या समझ में आ रहा है पिक्चर में। बताइए, क्विकली इंटरप्रेट कीजिए। Sir, even though he is poor, it is his ambition. हाँ जी, It's his ambition to own a BMW. हाँ, there is a donkey and on the forehead of the donkey there is a logo of BMW. Yeah. And that person is sitting happily and उसके हाथ में मोबाइल भी है। अब ये पिक्चर मैं देखा हूँ बिटवीन दुबई एंड ओमान, मैं ट्रैवल कर रहा था एट दैट टाइम। ये पिक्चर मुझे अच्छा लगा तो क्लिक करके रख लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। बट देयर इज अ ग्रेट मैसेज इन दिस पिक्चर। व्हाट इज दैट? ये इंसान कुछ कह रहा है दुनिया से, कुछ मैसेज दे रहा है। ये डोंकी मेरा BMW है। वेरी गुड शिल्पी जी, वंडरफुल। ये डोंकी मेरा BMW जैसा है। वेरी गुड। और Sir, the person is satisfied with his vehicle. वेरी गुड इंटरप्रिटेशन प्रीति जी। द मैन इज हाईली सेटिस्फाइड, उसको BMW की कोनो जरूरत नहीं, वो ऐसा ही बैठा है, गधे को ही अपना BMW समझ रहा है, संतुष्ट आदमी। और पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, क्यों बिला वजह पेट्रोल पे खर्चा करें, गधे को यूज करते हैं और इसी को BMW समझ लेते हैं। Yeah. Tell me, there is some message in this picture. What is it? If we want to be happy, we can be happy. Okay, the reason we have to find out in ourselves. Okay. No one can be satisfied by gaining all the things of the world. Satisfaction lies inside us. Very good, very good. So, in each situation, every individual is thinking in a different way. And without our knowledge, we are giving some messages to other people, verbally or non-verbally. We are communicating something, right? Usliye, understanding self and understanding others is becoming very difficult. Let's proceed. Now, boss and employee. Interview में बोल रहा है, if you know how to beg, we have an opening in our collection department. बस असिस्टेंट को बोल रहा है, अगर आपको भीख मांगनी आती है तो हमारे कलेक्शन डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी है। आप क्या सोचते हैं? What is this way of talking? Somebody is talking to somebody. A different situation. What is your interpretation? So these are ways of thinking, ways of understanding people, ways of understanding others. Okay, now look at this visual. What do you think? I am sure boys are thinking in a different way, girls are thinking in a different way. Oh, natural division hai between male and female. Understanding, thinking patterns are different. But scientifically, a fully grown man's brain is 50 grams more than woman's brain. Medically, it is proven that the weight of the brain is 50 grams less in women. But efficiency-wise, women brain is more efficient than men. Yeah. बताइए, what do you think? Quickly, time हो रहा है. Art of photography. Yes. It's an art of photography. Trick photography. Yes, you are right. Trick photography. But when I showed it to MBA students in a big city, all the boys said, sir, girls do not have brains, sir. They are wasting their time with rocks and mountains. Bole, all the boys.
फिर मैं गर्ल्स को पूछा व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, देन दे सेड सर वी डोंट ट्रस्ट इन बॉयज सर, वी ऑलवेज ट्रस्ट द माउंटेन्स एंड रॉक्स सर, दे सेड। तो अपना 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 नजरिया है, सोचने का तरीका है। Okay, these are the examples of how we understand, how we look at things and what is actually there. Okay, now एक काम कीजिए, छोटा सा एग्जाम है आपके लिए, असेसमेंट के लिए आते हैं। अभी मैं फाइनल स्टेज पे पहुंच रहा हूं हमारा लेक्चर का। So let us try to assess your emotional intelligence. यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है, there is a table on the screen. There are emotions in the left column, then percentage of the day and why. For example, number 1, anger is one emotion. Anybody can get angry, but in a typical day, in a particular day, what is the percentage of getting angry? Your own percentage. You need not show it to me, but अपने आप एक assessment कर लीजिए, पेन पेपर लीजिए, फटाफट लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस पे लिख लीजिए what is the percentage, कितने प्रतिशत भारतीय गुस्सा होते हैं एक दिन में? Any percentage, 30, 40, 10, 25, आप लिख लीजिए। Then in the third column write why are you getting angry, आपको गुस्सा क्यों आता है? So I need the percentage and the reason. Number 2, happiness, कितने प्रतिशत भारतीय खुश होते हैं हर दिन? What is the percentage and what is the reason? Fear, डर किससे लगता है? How much? What is the percentage of fear per day and why? Individually it is different, so अपना अपना percentage लिखिए। Disgust क्या कहते हैं हिंदी में? घृणा, disgust है ना सर? मैडम थोड़ा बताइए disgust को क्या कहते हैं? घृणा सही है? घृणा, हेलो, आंसर मी, एनीवन? मैडम, सर, कोई है, सुन रहे हैं? यस सर। Discuss मतलब सलाह करना। हाँ, घृणा होता है शायद, घृणा ही है करेक्ट वर्ड। डिस्गस्ट, पसंद नहीं है हमको उसके बारे में, उसको डिस्गस्ट कहते हैं। सो व्हाट इज द परसेंटेज एंड व्हाई? देन रिवोल्ट, प्रतिक्रिया जो होती है ना, रिएक्शन, रिवोल्ट करना, किसी के अगेंस्ट जाना। हाउ मेनी एंड व्हाट इज द परसेंटेज एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? देन सरप्राइज, आश्चर्य, व्हाट इज द परसेंटेज एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? लव, अफेक्शन, प्यार मोहब्बत, कितना परसेंट होता है पर डे? देन व्हाई? लाइकिंग, like is different, love is different. Okay, love, it starts with liking, then it may end up in love, that is different story, but like is different, love is different. Sadness क्या कहते हैं हिंदी में? उदास, उदासी, sadness, उदासी। या वीकनेस, बहुत कमजोर लग रहा है, कितना लगता है? और बहुत एक्टिव लग रहा है। देयर आर सेवरल इमोशंस बट आई हैव टेकन 10। ये परसेंटेज लिखिए और रीजन लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा चल रहा है। नेक्स्ट, डैनियल गोलमैन तो मैं बता दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन योर इमोशंस एंड इंटेलिजेंस, माइंड एंड हार्ट, knowing yourself and others' feelings, trying to think or feel from others' point of view. EI, emotional intelligence, is responsible for 58% of your job performance. आप जहां भी काम करने के लिए जाते हैं, wherever you are working, your job performance is 58% emotional intelligence, and बाकी जो percentage बचा 42% आपका knowledge and other skills होता है, मगर 58% आपको emotional intelligence चाहिए, then you will be successful. This is the human brain, and these are three main areas in the human brain. The God Almighty has created this. No, though you are talking about artificial intelligence, virtual reality, whatever technology is happening. नहीं आ रही है। Hello? Yes sir, Yes? अब आ रही। दिख रहा है screen? Hello? Somebody saying something? Yes sir, दिख रहा है। So this is naturally created by God Almighty. No matter technologically how advanced you are, artificial intelligence, robo technology, वो सब आ गया, मगर creating this type of mind is very very difficult. बहुत सारे layers है brain में। हिप्पोकैम्पस एक जगह है, मैप में देख सकते हैं आप, पिक्चर में। It is
controlling all the emotions and memory in the brain. Amygdala एक area है brain में, emotional control and fear control it is doing. Hypothalamus, it regulates fear and aggression in the human mind. So different functions in different layers. कितना complex है human brain आप सोच लीजिए. ये सब any emotion, anything, okay, it will be in seconds it is processed and your reaction will come out. इतना बढ़िया है human brain. ये बनाना बहुत मुश्किल है. Okay, next. We feel sometimes emotional hijack हो जाता है. What is it? We feel before we think. Everything that we sense has already been filtered through our emotional brain. Brain में filter हो जाता है information. I want to think in this way only. That is fixed character. आप कुछ नहीं कर सकते. उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल है. When danger is sensed, we react emotionally fast before the information has reached any part of the cerebral cortex in the brain that allows us to process and think rationally. पहले ही filter हो जाता है emotions. Okay, ये डरावना चीज है तो डरो. Already prepare हो जाता है. Mind is saying that. When what we sense reminds us of past threat, अगर आपका भूतकाल में कुछ हुआ होगा, ऐसी घटनाएं हुए होंगे कि आप डरते रहते हैं, या तो ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होना है. You feel that in future it should not happen. So what happens? Your brain is already in a set pattern. वो ऐसा ही सोचेगा, आप कुछ भी सोचें, और सबके लिए ऐसा ही सोचेंगे. When what we sense reminds us of the past threat, we react with the same intense emotions. ये emotional intelligence में कहा गया, डेनियल गोलमैन का किताब पढ़िए. What we sense, अगर अभी कुछ हो रहा है, उसको कोई पिछला लिंक है पास्ट वाला, तो वही पैटर्न में सोचेगा, नया सोचेगा ही. We may not even be aware of the memory that has been triggered. हमको पता नहीं चलता है, दिमाग में बैठ गया, बस ऐसा ही होगा, तो ऐसा ही होगा. तो आपका सोचना है, मगर it may not be true. Okay. Next, withstanding the hijack. In order to think rationally and respond rather than react, respond अलग है, react अलग है. Emotionally, we need to allow the information to reach the rest of the brain. पहले समझिए, देखिए क्या हो रहा है, analyze कीजिए. We can do this by becoming aware of our emotional trigger. कहाँ से ये emotion आया है? आपको रोना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? Why it is happening? Past में भी ऐसा हुआ था क्या? किसी वजह से हुआ था क्या? वो सोचना है. But it may not be the same reaction. It may be different, or the reason may be different. अभी आपको बहुत खुशी हो रही है. From where it is coming? That trigger. It is called trigger. कहाँ से आ रहा है? वो समझिए. Okay. Before reacting, वो सोचना है. These skills are key components of emotional intelligence. Okay. अभी देखिए, left side पूरा low emotional intelligence है, right side पूरा high emotional intelligence. Okay. Aggressive, demanding, easily distracted, selfish, passive, critical, ये सब low emotional intelligence. देखिए, assertive, warm, patient, stable, detailed, careful, meticulous, ये लोग high emotional intelligence. पंकज सर, पंकज जी, yeah. Any question here? Any comment? Okay. अब देखिए, कहाँ से ये पर्सनालिटी बन के आती है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फैमिली, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स, ये सब मिलकर आपकी पर्सनालिटी बन जाती है. अब बायोलॉजिकल फैक्टर में हेरिडिटी है, जो आपके पूर्वजों से आती है, ब्रेन है, फिजिकल फीचर्स है, सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स. फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स, सोशलाइजेशन, बिहेवियर, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, होम एनवायरनमेंट, कहाँ आप पले बड़े हैं, यहाँ से भी आपका पर्सनालिटी बनती है. कल्चरल फैक्टर्स, इंडिपेंडेंस, अग्रेशन, कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन, ये कल्चरल फैक्टर्स है पर्सनालिटी में. सिचुएशनल फैक्टर्स, पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, ये सिचुएशन पे रहता है. समटाइम्स यू आर पॉजिटिव, समटाइम्स यू आर नेगेटिव. ये सब चीज कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. ऑल दीज थिंग्स मैटर इन योर पर्सनालिटी. चलिए, टिबेटन पर्सनालिटी टेस्ट है, अभी एक छोटा सा टेस्ट कर देते हैं. असेसमेंट की बात आ रही है ना, कैसा समझोगे अपने आप को?
हाँ देखिए एक बार स्क्रीन पे देखिए और आंसर कीजिए। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, इसको दलाई लामा पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, मगर आई डोंट थिंक दलाई लामा हैज मेड दिस, बट पीपल से दिस इज टिबेटन टेस्ट। रेखा मैम दिख रहा है स्क्रीन पर? जी सर। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पुट द फॉलोइंग 5 एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। एक 5 जीवों का नाम दिया गया, काउ, टाइगर, शीप, हॉर्स, पिग। 5 चीज है इधर, इनको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाना है। गिव योर प्रायोरिटी, चॉइस ऑफ योर प्रायोरिटी। 1 2 3 4 5 नंबर्स देना है। विच इज फर्स्ट? काउ, टाइगर, शीप, हॉर्स, पिग। रेखा मैम थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। गाय, हाँ जी, सुअर, हाँ, चीता, घोड़ा, भेड़। ये 5 animals है। हाँ, आपका प्रायोरिटी दीजिए। 1 2 3 4 5 है, आपका प्रायोरिटी क्या है? कौन सा वाला पहले? आप अपना दीजिए सर, बोलने की जरूरत नहीं है। आपका प्रायोरिटी दीजिए 1 to 5। हो गया? डन? Yes sir, done. नंबर 1 हो गया। डन? Sir, cow, pig, sheep, tiger, horse, and tiger. So, write one word that describes each one of the following. अभी यहाँ पर डॉग, कैट, रैट, कॉफी एंड सी नंबर 2 में दिया गया डॉग। मैं जब कुत्ता वर्ड बोलता हूँ, आपका मन में कौन आ रहा है? फेथफुल। हाँ, कुछ भी हो, और डॉग बोलते हैं आपके मन में जो भी आ रहा है वो डिस्क्राइब कीजिए। डॉग के बारे में आपका राय क्या है? कुत्ते के बारे में आपका राय क्या है? डिस्क्राइब। कैट के बारे में आप क्या सोचते हो? रैट, चूहा, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? 2-3 वर्ड लिखिए। कॉफी या चाय, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देन सी, समुंदर। एक दो वर्ड लिखिए, जल्द, ज्यादा टाइम नहीं लेने का। हो गया? डन? हेलो, आंसर दीजिए। जी सर। यस सर। हाँ, ओके। नंबर 3, think of someone who also knows you and is important to you, that you can relate to the following colors. अभी कलर्स बताएंगे, 5 कलर। ये कलर का नाम लेते ही आपके मन में कौन सा शख्स आ रहा है, कौन सा इंसान आपका ध्यान में आता है, उनका नाम लिखिए इधर। प्लीज डू नॉट रिपीट योर आंसर ट्वाइस, नेम जस्ट 1 person फॉर ईच कलर। एक कलर के लिए एक इंसान की नाम लिखिए उधर। येलो, पीला रंग देखते आपको कौन याद आता है, वहां पर लिखिए, एक इंसान का नाम लिखना। ऑरेंज, ऑरेंज कलर क्या कहते हैं हिंदी में ऑरेंज के? नारंगी। नारंगी। नारंगी रंग बोलते हैं, आपका मन में कौन आ रहा है वो शख्स का नाम लिखिए, बताना नहीं है, लिखिए। रेड कलर, रेड देखते ही सोचते हैं आपके मन में कौन आ रहा है। और व्हाइट, व्हाइट देखते ही या सोचते ही, ख्याल आते ही कौन आ रहा है आपका दिमाग में? ग्रीन, हु इज रिमाइंडेड टू यू व्हेन वी से ग्रीन कलर? डन? हो गया? डन? Yes, done. वेरी गुड। अभी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, देखिए। नंबर 1, ये काउ, टाइगर, शीप, हॉर्स, पिग, ऐसा नंबर दिए ना 1 2 3 4। काउ का मतलब है करियर। अगर आप नंबर 1 काउ को देते हैं तो इसका मतलब है आपके लिए करियर नंबर 1 है, आपका जॉब। देन टाइगर मतलब प्राइड है, अपने आप में बहुत
आपका चीज है, अगर टाइगर आपका प्रायोरिटी है। शीप अगर प्रायोरिटी दिया है तो लव है, अफेक्शन, प्यार मोहब्बत। हॉर्स मतलब फैमिली है। एक्चुअली गधा होना चाहिए फैमिली के लिए, क्योंकि गधे जैसा काम करोगे तो फैमिली अच्छा रहता है। पिग मतलब सुअर जो है वो मनी, अगर पिग का प्रायोरिटी दिया गया मतलब पैसा बहुत प्यारा है। ये है एक तरीका अपने आप को जानने का। और भी है, दिखाता हूँ। हाँ, डॉग कुत्ता बोलते हैं, आपने क्या लिखा मुझे पता नहीं, दैट इज अबाउट यू। किसी का माइक ऑन है मैडम, बहुत साउंड आ रहा है। मैडम सर, माइक का साउंड आ रहा है। हाँ हाँ जी, डॉग मतलब आप हो, यू। योर डिस्क्रिप्शन ऑफ कैट, कैट को जो डिस्क्राइब किए हैं आप, दैट इज योर पार्टनर, मे बी प्रेजेंट और फ्यूचर। रैट चूहे के बारे में जो लिखा है दैट इज योर एनिमी। कॉफी टी के बारे में जो लिखा है दैट इज योर लव, अफेक्शन। एक्चुअली जरूरतें भी हो सकते हैं, जैसा लव है एक्सेट्रा। योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी, समुद्र के बारे में जो लिखा है दैट इज योर लाइफ एक्चुअली। अभी लास्ट में देखिए कलर्स हैं। येलो, समवन यू विल नेवर फॉरगेट। येलो बोलते ही जो इंसान आपके दिमाग में आए हैं उनको आप कभी भी भूल नहीं सकते, यू कैनॉट फॉरगेट। ऑरेंज, समवन यू कंसिडर योर ट्रू फ्रेंड, आपके सच्चे दोस्त है, ऑरेंज बोलते जो आदमी आपके दिमाग में आया। रेड, समवन दैट यू रियली लव, आपका सोलमेट है वो। व्हाइट, योर ट्विन सोल, आपके जैसे और कोई सोल है, आत्मा, वो है। देन ग्रीन, समवन दैट यू विल रिमेम्बर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इनको आप कभी भी नहीं भूल सकते, ग्रीन कलर में जो आए हैं। तो दिस इज वन इंटरप्रिटेशन। यस, टिबेटन पर्सनालिटी हो गया। तो अभी देखिए अपना इवैल्यूएशन सिस्टम क्या हो रहा है एक्चुअली, दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ? Yes, sir. This is our evaluation system. For example, I am testing somebody. ये किनका आवाज आ रहा है, बार बार आवाज आ रहा है। विजेंद्र जी आपका माइक थोड़ा म्यूट कीजिए। विजेंद्र सर, विजेंद्र कुमार जी थोड़ा माइक म्यूट कीजिए। विजेंद्र कुमार जी, यस अभी ठीक है, ओके, थैंक यू। आवर एजुकेशन सिस्टम, अभी मैं एक एग्जाम लेता हूँ, सब लोग शिक्षक लोग हैं इसलिए बताना जरूरी है। मैं एक कुत्ता, एक सील, एक फिश, एक एलिफेंट, एक पेंगुइन, एक बंदर, एक कौवा, इनको बुलाकर एक टेस्ट ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग द टेस्ट ऑफ ए डॉग, सील, फिश, एलिफेंट, पेंगुइन, मंकी एंड अ काउ, सॉरी क्रो। इनके लिए there is one common examination, that is climbing the tree. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb the tree. अब इसमें कौन पहला चढ़ जाएगा ट्री के ऊपर? मंकी। मंकी, हाँ वो ए ग्रेड वाला है ना? और नेक्स्ट कौन? क्रो, वो बी ग्रेड वाला है। और व्हाट अबाउट एलिफेंट? वो क्या टी में चला जाएगा? और सील और फिश के बारे में क्या कहना है? हाँ हाँ, वो झाड़ को तोड़ पाता है, वृक्ष को तोड़ देगा एलिफेंट वो, मगर एग्जाम में वो नहीं दिया ना, वृक्ष को तोड़ना एग्जाम नहीं है, वृक्ष के ऊपर चढ़ना है। ओके, हाउ अबाउट फिश एंड सील, वो चढ़ पाएगा? हेलो, zero, it cannot go up. And dog, maybe it will try and go onto the tree. But my examination is same for everybody. That's why Albert Einstein says everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Albert Einstein said that if you ask a fish to climb a tree,
it can never climb a tree. And you will say, because you are the examiner, you are stupid and you are failed. स्टूडेंट से भी यही कहते हो ना आप लोग, एक एग्जाम दे देते हो, अगर वो मार्क नहीं ला पाया, फेल हो गया, तो वो स्टूपिड है, तो जिंदगी भर स्टूपिड ही रहेगा. It means evaluation criteria is different. Your examination system is different. Elephant ability is different. Fish ability is different. As per the ability, you are not testing, na? Because of your test, their ability is going somewhere. So wrong system hai. That's why multiple intelligence theory करके है. Okay. Howard Gardner, he published a book called Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, 1983. All the teachers are requested to study this book because there are 9 types of intelligence in every human being, as per Howard Gardner. But because of our educational system, our examination system, maybe there is no time or maybe there is nobody to think of this type of examination system. We are unable to test all the 9 intelligences of our students. अगर कोई शोध करना चाह रहा है, रिसर्च करना चाहिए, तो ये टॉपिक लीजिए and evaluation and testing system पे काम कीजिए, and whether we can implement this type of assessment or evaluation in our examination system, maybe semester wise or maybe year wise, and can we test all 9 intelligences or not? ये कर सकते हैं क्या हम? अगर नहीं कर सकते हैं, so we are doing very, very bad with the students, because some abilities, some skills, some knowledge is going without testing the real ability of the students. आप as a teacher, उनकी क्षमताएं, कौशलताएं आप परख नहीं पा रहे हो. You are unable to test. इम्तिहान आप नहीं ले सकते हो, बच्चे को आप बुद्धू कह के भेज देते हो. मगर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आप टेस्ट कर सकते हैं. अगर नहीं टेस्ट किया, अपनी गलती है, बच्चे का कोई गलती नहीं. बट टू इम्प्लीमेंट दिस इनटू एजुकेशन सिस्टम, it is a very, very big task. So I request the Department of Education and RNTU and many universities and whoever is attending, all the teachers, I request you to try to integrate this type of examination system, trying to assess at least 3, 4, 5 intelligences, if not 9 intelligences. अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया. यहाँ एक लिंक दिया हूँ. I request everybody to answer this link. Organizers, मैं ये लिंक चैट विंडो में डाल रहा हूँ. काइंडली ये सबको पास ऑन कीजिए और इनका जवाब वो लोग लिख सकते हैं. ओके मैडम? Organizers, I am typing this into the chat window. ये लिंक पर आप राइट क्लिक कीजिए, ओपन द लिंक कीजिए और आराम से भरिए. अभी भरने की जरूरत नहीं है. कॉपी दिस लिंक इनटू योर मेल और इन योर फोन. वो लिंक खोलिए, बाद में आंसर कीजिए. दैट विल गिव यू ऑल द आंसर्स फॉर मल्टीपल इंटेलिजेंस. रेखा मैम और एनीबॉडी? जी सर. ये लिंक सबसे भरवाना है मैडम. जी सर. बहुत बढ़िया है. अगर नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, मगर ये बहुत बेनिफिट करता है मैडम लोगों को. मैं आपको और किरण मैम के ईमेल आईडी में इसमें डाल देता हूँ. इसमें जी सर. चैट विंडो से भी आप कॉपी कर सकते हैं. ओके मैम? जी सर. ये सबसे भरवाइए. तो अंत में व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हाउ डू वी असेस इंडिविजुअल्स? इस पे चर्चा चला. आर देयर एनी टेक्निक्स टू असेस पीपल? इस पर भी चर्चा चला. ओके. राइट, मैं भेज दिया, आप लोग देख लीजिए. फिर चैट विंडो में भी है. एनीबॉडी कैन कॉपी दिस और टेक द स्क्रीनशॉट. ओके मैडम? अंत में यही कहना है. या एनी डाउट्स हियर? मल्टीपल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, किसी पे कोई चर्चा करना है? बिकॉज दैट इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन. मैं अंत में आ रहा हूँ. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन टाइप इन द चैट विंडो or ask me directly. Rekha ma'am, Kiran ma'am.
जी सर। सर है क्या आप लोग सुन रहे हो? यस सर। जी सर। So this is the link to understand what is multiple intelligence. तो हमारा रिसर्च चल रहा है, आप आंसर कीजिए तो बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, what is education? It is a letter written by somebody at the end of World War II. This letter was found in a Nazi concentration camp. It is addressed to teachers. So टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए एक लेटर लिखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। कोई आदमी मर रहा था, मरने से पहले लेटर लिखकर चला गया। डियर टीचर्स, आई एम अ सर्वाइवर ऑफ कंसंट्रेशन कैंप। मैं कंसंट्रेशन कैंप में मर रहा था मगर निकल गया। माय आईज सॉ व्हाट नो मैन शुड विटनेस। मैं अपने आंखों से बहुत कुछ देख चुका हूँ। गैस चैम्बर्स बिल्ट बाय लर्न्ड इंजीनियर्स। गैस चैम्बर्स बनाए गए, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स है दुनिया में, वो लोग गैस चैम्बर बना दिए, उसमें लोगों को मारा जा रहा है। चिल्ड्रन पॉइजन्ड बाय एजुकेटेड फिजिशियंस। मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा हूँ, फिजिशियंस डॉक्टर्स है वो बच्चों को मार रहे हैं। इन्फेंट्स किल्ड बाय ट्रेन्ड नर्सेस। छोटे बच्चों को नर्सेस मार दे रही हैं क्योंकि उनको कहा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिटलर के जमाने में। विमेन एंड बेबी शॉट एंड बर्न्ड बाय हाई स्कूल एंड कॉलेज ग्रेजुएट्स। औरतों को और बच्चों को हाई स्कूल और कॉलेज के ग्रेजुएट्स मार रहे हैं, अपनी आंखों से मैं देखा हूँ। सो आई एम सस्पिशियस ऑफ एजुकेशन। मुझे डर लग रहा है, मुझे डाउट है एजुकेशन के बारे में। माई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स इज हेल्प योर स्टूडेंट्स बिकम ह्यूमन। इंसान बनाइए। योर एफर्ट्स मस्ट नेवर प्रोड्यूस लर्न्ड मॉन्स्टर्स। मतलब नॉलेज। पहले बीडीएस को धन्यवाद दिलवा दो, फिर बाद में मैं धन्यवाद दे दूँ। पहले बीडीएस को दिलवा दो धन्यवाद, फिर बाद में मैं दे दूँगा। अच्छा लगा। माइक थोड़ा आप कीजिए। स्किल्ड साइकोपाथ मतलब स्किल है मगर वो साइकोपाथ है, बहुत डेंजरस आदमी है। ऐसे इंसान भी बन रहे हैं। एजुकेटेड इलिटरेट्स, पढ़ा हुआ अनपढ़। देन रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक और इम्पोर्टेंट, ये सब सिखाइए मगर इंसान बनाइए। Only if they serve towards making our children more human. अब शिक्षकों से अनुरोध है कि आप इंसानों को बनाइए और अपने आप को परखिए, दूसरों को भी परखिए। That's all from my side. Any questions? You are welcome. Thank you, Rabindranath Tagore University, Department of Education, Dean